Hello बच्चों, अस्सलाम वालेकुम. Welcome to Shahid Sir's Education Point. This class is for class 3rd semester, my dear, and the title of the paper is Psychological Foundations of Education. So far we have completed one unit and that was learning its theories. तो हमने दूसरा यूनिट उठाया इंटेलिजेंस. तो कल मैंने इंटेलिजेंस आपको पढ़ाया था. इंटेलिजेंस पे मैंने 2 लेक्चर्स दिए थे. इंटेलिजेंस का मतलब क्या है और वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द इंटेलिजेंस इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट डेफिनेशंस, राइट? तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट theories and beautiful theories of intelligence. So here we are. But before I start, I have one thing to say. If you are new to this channel, kindly subscribe to my channel and press the bell icon so that you can get my latest lectures. And plus, my dear, the only thing that you can do for your Shahid sir is share as much as you can. Share my channel with those students who are not in your college but they are in other colleges as well. And share with those students who are from different semesters, right? So here we are, my dear. So today our topic is theories of intelligence. Okay, so far as theories of intelligence is concerned, my dear, theories of intelligence को समझने के लिए हमें 2 approaches को समझना है बेटा. So with the help of these 2 approaches, we can understand the complete nature of the intelligence, right? Intelligence का मतलब क्या है, इसका nature क्या है, intelligence क्यों ज़रूरी है, तो ये सब जानने के लिए हमें theories को पढ़ना है, ठीक? तो theories को हमने categorize किया 2 हिस्सों में. One approach is called as psychometric approach. Psychometric approach. ये बेटा हमेशा याद रखना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर. आगे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा. तो सेकंड जो अप्रोच है दैट इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच. इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच. दिस इज सेकंड वन. ओके, now coming to the first one, psychometric approach का मतलब क्या है? Psychometric approach में when we define intelligence in terms of aggregate of abilities, तो कल जितने भी मैंने definitions आपको पढ़ाया, हर किसी definition में एक चीज common था, ability to deal with the concrete objects, ability to deal with abstract things, ability to have a social intelligence, right? तो जो भी मैंने ability to understand, ability to perceive, ability to reason well, judge well, बहुत सारी definitions आपने बताए और हर किसी definition में एक चीज common होती थी, that is ability. तो my dear, when you are going to define intelligence but in terms of abilities, such type of approach is called as psychometric approach. तो यहाँ पे हम लिखेंगे here we define intelligence in terms of abilities. Good. So you have ability, you have the ability to read, ability to write, etc. Okay. Another thing is information processing approach. यहाँ पे हम abilities पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, यहाँ पे हम cognition पे ज़्यादा जोर करते हैं. हम information को retain करते हैं, इंफॉर्मेशन को एनकोड करते हैं, फिर इसको प्रोसेस करते हैं, तब जाके आप अपना आउटपुट निकालते हो. यहाँ पे एबिलिटी है, इट इज नॉट, ये इंटेलेक्चुअल पे ज़्यादा जोर नहीं देता है, यहाँ पे ये कॉग्निशन पे ज़्यादा नहीं जोर देता है. यहाँ पे जस्ट लाइक ए कंप्यूटर में क्या करते हैं, इनपुट दिया, प्रोसेसिंग हुआ, आउटपुट निकाला. सिंपल इज द केस विद आवर माइंड. आवर ब्रेन इज जस्ट लाइक ए कंप्यूटर. हमने इंफॉर्मेशन को गैदर किया, हमारे माइंड में रखा, वहाँ जाके प्रोसेसिंग किया, फिर जाके आउटपुट दिया. तो यहाँ का मतलब क्या है, पहले स्टिमुलस हमें मिल रहा है तो वो ऑर्गेनिज्म के अंदर चला जाता है, कॉग्निशन जाता है, प्रोसेसिंग करता है, तब जाके वो आर देता है. तो SOR अप्रोच यानी यू आर प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन. What is information? It may be any event, it may be any situation, any type of stimulus, my dear, that go into your mind, that is organism, and then you start giving response. So simply SOR. Here it is a simply ability. You have ability to read, ability to write, ability to deal with concrete things, okay, etc. So this is psychometric approach. So here
वी फोकस ऑन व्हाट, एबिलिटीज। हमारा यहाँ पे फोकस होता है एबिलिटीज पे, लेकिन हमारा फोकस यहाँ पे होता है ना, जो कोई चीज, जिस चीज के साथ आप डील करते हो उस चीज को आप पहले अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हो। यू आर एक्चुअली प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन दैट सराउंड्स यू एंड देन यू कम अप विद अ सॉल्यूशन। सो दैट्स व्हाई इट इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। समझ आ गया बेटा? ओके, नाउ हम किन थ्योरीज को साइकोमेट्रिक अप्रोच के अंडर रखेंगे और किन थ्योरीज को हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के अंडर रखेंगे। आज मेरा वीडियो जो है बिल्कुल शॉर्ट होने वाला है, बिकॉज रियली मतलब मैं 2-3 दिन से मैं ठीक नहीं हूँ, मेरा गला भी थोड़ा ख़राब है, तो इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो अगर हम साइकोमेट्रिक, हाँ, सो फार एज योर सिलेबस इज कंसर्न माय डियर, आपके सिलेबस में साइकोमेट्रिक अप्रोच है, आपके सिलेबस में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच नहीं है। मैं सबकी थ्योरीज को एनलिस्ट करूंगा यहाँ पे, लेकिन वही थ्योरी हम एक्सप्लेन करेंगे जो आपके सिलेबस में है। ओके, तो जब हम साइकोमेट्रिक अप्रोच की बात करते हैं, हम किन किन थ्योरीज को साइकोमेट्रिक अप्रोच में रखेंगे। नंबर 1 थ्योरी इज यूनिफैक्टर थ्योरी। यूनिफैक्टर थ्योरी, इट वाज गिवन बाय एल्फ्रेड बिनेट। ये सब आप याद रखना। नंबर 2 इज टू फैक्टर थ्योरी। एंड ये दिया है चार्ल्स सुपरमैन ने। देखो ये लिस्ट जो है, इंटेलिजेंस का लिस्ट जो है, किस किस थ्योरी को मैं किस अप्रोच में रखूंगा, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। फॉर एग्जाम्पल, यूनिफैक्टर थ्योरी इट बिलोंग्स टू द साइकोमेट्रिक अप्रोच, टू फैक्टर थ्योरी इट बिलोंग्स टू द साइकोमेट्रिक अप्रोच। इसी तरह माय डियर, आई हैव अनदर थ्योरी दैट इज ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ग्रुप फैक्टर थ्योरी, इट इज लॉइस थर्स्टन। ये हमें डिटेल में पढ़ना है बेटा आगे, राइट। अनदर इज मल्टीफैक्टर थ्योरी। मल्टीफैक्टर थ्योरी was given by E.L. Thorndike. And my dear, we have structure of intellect. स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, और ये दिया था गुलिफोर्ड ने। इसको गलिफोर्ड्स मॉडल ऑफ इंटेलेक्ट भी कहते हैं, राइट। अनदर इज माय डियर, वी हैव मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। मल्टीफैक्टर इज वन, मल्टीपल इंटेलिजेंस इज अनदर। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, इट्स माय डियर हार्वर्ड गार्डनर। वेरी इंपॉर्टेंट। So how many theories I put under psychometric approach, my dear? So you can easily see psychometric approach मैंने क्या कहा है कि when you are actually going to define intelligence, but if you are defining intelligence in terms of abilities, so you are making use of what? Psychometric approach. But if you give any information, then that information first undergoes the processing, then you can give the response. That means it is what process? It is information processing approach. I hope बेटा it is clear to you. तो साइकोमेट्रिक अप्रोच में मैंने 5-6 थ्योरीज यहाँ पे लिखी है। यूनिफैक्टर थ्योरी एल्फ्रेड बिनेट, टू फैक्टर थ्योरी चार्ल्स सुपरमैन, ग्रुप फैक्टर थ्योरी लॉइस थर्स्टन, मल्टीफैक्टर थ्योरी E.L. थॉर्नडाइक, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट गॉलिफोर्ड एंड मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी हार्वर्ड गार्डनर। बेटा मैं सारी थ्योरीज को एक्सप्लेन करूंगा। आपके सिलेबस में 3-4 थ्योरीज है, बट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। बट हम पहले वो थ्योरीज एक्सप्लेन करेंगे जो आपके सिलेबस में है, फिर जब टाइम बचता है तो मैं सारी थ्योरीज को आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में किस किस थ्योरी को रखेंगे? ओनली 2 थ्योरीज माय डियर, यू हैव टू रिमेंबर व्हेन यू टॉक अबाउट व्हाट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। वन इज ट्राइआर्किक थ्योरी, ट्राइआर्किक थ्योरी। और ये जो ट्राइआर्किक थ्योरी है ना, इट वाज गिवन बाय रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, राइट। एंड नंबर नेक्स्ट इज पास मॉडल। ये मैं बेटा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पास मॉडल क्यों कहते हैं इसको? इट इज बेसिकली P फॉर प्लानिंग, A फॉर अराउजल, S फॉर साइमल्टेनियस, S फॉर सक्सेसिव। ये आगे हम आपको बताएंगे व्हाई इट्स कॉल्ड एज पास मॉडल। तो पास मॉडल इट वाज गिवन बाय JP दास। इसके साथ और 2 एसोसिएट्स थे, वन इज किरबाई एंड निगलेरी। So my dear, these are the
थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। तो थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया, वन इज साइकोमेट्रिक अप्रोच, अनदर इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। साइकोमेट्रिक अप्रोच में मैंने ये वाली थ्योरीज आपको बताई जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया, अभी मैंने मेंशन किया, एंड सेकंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में मैंने ये दो थ्योरीज आपको बताए। तो बेटा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग्स थ्योरी किस अप्रोच में आएगी, ये आएगी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में। आई होप बेटा यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। इफ रियली देन लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लस हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट माई लेटेस्ट लेक्चर्स। थैंक यू, may Allah bless you and keep always learning.